Hello, viewers. Welcome back. Today we have a special guest with us. He joins us from another famous, or I can say infamous, MGAs in Canada. So we have Amandeep Sohal joining us today to share his story with us. Welcome to the show, Amandeep. Well, thank you, Sparsh, for inviting me here regarding Absolutely. this session. A And pleasure. it is my wonderful pleasure being here Thank and you. talking about the long journey of MGAs and financial services here. Right. Me about your story now. So, like every other person, somebody introduce you somewhere with Right. somebody regarding the financial sector. And same like mine as well, that one of my friend introduced me to somebody that is working with MGA, very famous MGA, you know that. And initially I didn't had much interest in it. Okay, this is not for me. Right. It's a multi-level marketing financial sector Right. where initially I thought it's a pyramid sort of structure. But anyhow, they convinced me with the time it's not pyramid. It's not pyramid. And I said, it's okay, let's have a try. And I got licensed in 2015, around that time. And thereafter, I started my journey. Okay. And their famous 3330 stuff goes on. And so, did it feel like a pyramid well, in after you joined? in the papers not, Okay. but in reality, yes. Honestly, in the papers it's not pyramid at all. But in reality, when you listen the sessions and everything for the first, second time, it looks so good that they did their sweat 5 years, 6 years, did their hard work, left birthdays, left these things, that things, and now they're making millions. But in reality, when you go cope up over there, you will understand that with the pen, practically, Sparsh, you are into this industry for last 5-6 years. Right. If you write business with the pen, do you able to write $1 million in a year? No Do you way. have that time? No way. An average client takes 4 to 6 hours for the Exactly. life policy. Right. You need to explain them thoroughly, Right. and then you need to convince them. Right. Then you need to do follow up with them, and thereafter you make the sale, right? And the worst part of that MGA is that, okay, you are the one who did all the hard work. You connect with the client. You did everything. You closed the sale. You're getting less money than what upper level is making. Right. Right. So tell us a little bit about this. Can we expand on this a little bit more? Let's say I'm selling $100 per month term 20 policy with IA here versus there. So how much would the person at the lowest level or the first level make? I will sum up in a very generic term. You will make 3 times less money in that MGA because you started with 26%, okay, and your SMD is sitting at 66% plus bonuses. Plus bonuses, yes. Okay, so still there's a gap of 40%, plus there's a gap of bonuses. But yes, they will always convince you that, you know what, passive income. That's what you should look for. And honestly, if you read the any sort of documents, you read people, you met with people, you met with hundreds of super Saturdays, annual conventions, this and that. How many people they retain? Exactly. And now I feel that what they are doing is just recruit, mass recruiting, get the 2-3 sales from each person, let them go. Now focus on that market, which 2-3 sales you got for. Exactly. So technically, you want to, they are presenting, oh, I want to build you. For example, if I'm your senior, I want to build you. But technically, you are just a journey for me. तो वो आपके ही मार्केट में खेल के वो खुद अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं. Exactly. बिल्ड मैं आपको करना चाहता हूँ 100%. मैं किसी और को नहीं बिल्ड करना चाहता. बट आपसे 10 कॉन्टेक्ट मैंने ले लिए, उनकी सेल्स मैंने कर दी, और आधों का तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरा सीनियर पॉलिसी कर गया. तो वो सारा ओवरराइड बाईपास हो गया. यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो बर्न थ्रू योर मार्केट. Exactly. And just suck you dry and then throw you out. Exactly. If you leave at that point, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. And that's how the major stuff going on. You will see truck drivers. भाई, that person is SMD with no team. Wow, really? You will see ABC. Wow. Like, I'm not naming particular professions. I respect all the professions, but that guy never gave any time at all. But sitting at SMD, and तो ये हो कैसे रहा है? ये पॉसिबल कैसे है जब आपका सिस्टम बोलता है कि ये है 3330 फॉलो करो, you get to the second level,
फिर आप ये फॉलो करो, आपके कितने 7 लाइसेंस होने चाहिए MD लेवल पे? It depends. Right. You have 25,000 points and at least active 2 licenses and then 5 recruits and all that. But okay, tell me one thing first. I'll talking you very practically. When you pass a driving license, you should have a complete stop. You should this way. You should that way. Practically, people does that when they drive. After they drove 10 years, they don't know. They don't do. वो वैसे नहीं चलाते जैसे उन्होंने टेस्ट में चलाई थी गाड़ी. ठीक है, तो वही वहाँ पे हो रहा है. अब पेपर्स में तो ऐसे होना चाहिए, पर रियलिटी में नहीं होता. आप देखते हैं, ओ यू आर क्लोज टू दैट, ओ यू आर SMD. बट इफ यू आर नॉट क्लोज टू दैट, यू आर नॉट एन SMD. ओके. तो आप उस स्टेज पे पहुंचते नहीं, कुछ ना कुछ रह जाता है. आपका रोलिंग 3 मंथ्स का चक्कर पड़ता है. आपकी पॉलिसीज सेटल नहीं होती. आपकी चीजें नहीं होती. आपकी टीम खत्म हो रही जा रही है, बट दे आर गेटिंग क्लोज टू योर सीनियर. वो चाहते मैं तो सीनियर के साथ काम करना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं करना चाहता. अच्छा, तो वो रिलायंस अपने सीनियर पे बनाना चाहते हैं. एग्जैक्टली. कि जिससे टीम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, खुद से काम ना सीखे, खुद से क्वेश्चन ना पूछे. एग्जैक्टली. एंड आई सी अ पैटर्न डिवाइड एंड रूल. अच्छा. भाई ब्रिटिशर्स तो चले गए, ये लोग नहीं गए. द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट दे डू इज, ओके आपकी टीम में 4 MD हैं, आप SMD हो. आप एक MD को कह रहे हो, यू नो व्हाट, यू शुड कम्युनिकेट टू मी, यू हैव एनी इश्यूज, नो नीड टू टॉक विद देम. उसको बोले वो नहीं सही है, तुम बेटर कर रहे हो. उसको बोलते तुम बेटर कर रहे हो. अब आप उसको कॉल करते हो, भाई मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, आई एम एट दिस स्टेज, आई वांट टू डू दिस पॉलिसी, मुझे समझ नहीं आ रहा. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू आउट, वो कहेगा नहीं अपने SMD को फोन करो. SMD कहेगा मैं तो बिजी हूँ भाई. ठीक है, अगर कर भी देगा वो दूसरे MD को बोलेगा भाई इसे तो ये भी नहीं आता. भाई आपने सिखाया कब था? एग्जैक्टली. एट द एंड ऑफ द डे द होल सिस्टम वर्क्स इन अ वे, भाई तुमने ट्रेनिंग्स ही नहीं लगाई. अच्छा. नाउ व्हेन आई कम बैक टू ट्रेनिंग्स, भाई ट्रेनिंग्स में होता क्या है? आप दुनिया जहान के अपने काम छोड़ के आते हो ट्रेनिंग्स के लिए. ठीक है, कि सी आई एम वर्किंग पार्ट टाइम, being very honest to you, and everybody starts in a journey in a part time way. Then they go for full time, right? In a hope that एक दिन मेरी इतनी इनकम होगी, मैं 5 फिगर के ऊपर चला जाऊंगा. जो वो दिखाते हैं, हाँ, जो वो ड्रीम्स दिखाते हैं, हर कोई दिखाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर MGA, बट एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, हम एक इंसान एक टीम के साथ जुड़ते हैं, बट एक सिस्टम के साथ भी जुड़ते हैं. बिल्कुल. दिस नॉट समथिंग. बिल्कुल. आप इंसान जितने मर्जी अच्छे हो, बट यू आर ए स्कैमर. विल आई वांट टू बी विद योर कंपनी? एग्जैक्टली. आई वॉन्ट. राइट. तो वही चीज होती है, वहाँ सिस्टम देखने के लिए सारा कुछ. आप ट्रेनिंग्स में जाते हैं, चाहे वो सुपर सैटरडेज हो, चाहे आपकी वीकली ट्रेनिंग्स हो, डेली ट्रेनिंग्स हो. ओके, वन गाय कम्स इन, ओह मैं बड़ा गरीब था, मैंने ऐसे कर लिया, फिर मैंने ऐसे कर लिया, अब मैं मिलियन बना रहा हूँ. अच्छा. ओके, कितनी इनकम से? WFG की इनकम से. WFG की इनकम से. और जब आप उनका पे चेक देखोगे, भाई तुमने तो $1,00,000 कभी बनाया ही नहीं. एग्जैक्टली. एंड आप घर लेके बैठे हो. बट अगेन आई एम नॉट टॉकिंग ऑन देयर पर्सनल बिजनेस, व्हाट दे डू. नहीं, पर ये मैंने खुद काफी देखा है. इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रहा था, तो बातों ही बातों में ये पता चला कि देयर इज अ साइट कॉल्ड PDF फिलर. तो उस पे जाके आप कुछ भी उस पे नंबर डाल के अपना इनकम बना के दिखा सकते हो कि ये मेरा T4A है, मेरी इतनी इनकम है. अब वो आप अपने हिसाब से उस पर ऐड कर सकते हो. करते हैं, करने वाले करते हैं. ऑनेस्टली इफ आई टॉक अबाउट माय SMD, ही इज वर्किंग सिंस लास्ट 7-8 years. जब मैंने टच किया था अराउंड 35-40 के, तो उसने $1,00,000 टच किया था पहली बारी. ओके. तो मतलब आपसे ज्यादा वो पैसे बना के चला गया. सी the way they show the picture and the reality is sometimes not the similar way. You know what? आप किसी भी ट्रेनिंग्स में जाते हैं, आपको वर्थ तभी लगेगी इफ आई कंपेयर अबाउट Expedia एंड अदर MGA. ओके, आपको बोला कि ओके टुडे वी आर गिविंग ट्रेनिंग ऑन द सोशल मीडिया, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग? सोशल मीडिया ट्रेनिंग, दैट्स इट. अब सोशल मीडिया में आप जाके बोल रहे हो कि यू नो व्हाट, आप 3-3-30 करो, फिर 5-5-50 करो, फिर ऐसे करो. अच्छा. 15-15-15 करो. यू विल बी EMD, यू विल बी SCVC, यू विल बी दिस एंड दैट. कितने लोग बनते हैं EMD और SCVC? 2% आई गेस. मे बी इवन लेस. इतने भी नहीं बनते. जो मुझे पता है, जो इनका हेरिटेज प्रोग्राम था ओनरशिप का, जो उन्होंने एरिक ओल्सन के निकलने के पहले स्टॉप कर दिया था, तो उस टाइम में 16 SMD चाहिए एंड अ होल बंच मोर, even to get to that top 1% where you actually did own your book of business.
वो भी हेरिटेज प्रोग्राम उन्होंने निकाल दिया था जब एरिक ओल्सन छोड़ रहे थे WFG. So it is that easy for them to get rid of the ownership clauses as and when they need. You don't own your book of business. Exactly. Ask yourself, you met with many WFG people or you met with many other MGA people and all that. When you talk to them, everybody has their own system. एक कॉमन सिस्टम नहीं है, कोहेरेंट सिस्टम कॉमन सिस्टम नहीं है कि हम इस तरह से चलेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा, ये हो जाएगा एंड इट ऑटोमेटिकली मुझे अपने सीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, क्या होगा. अगर मुझे कोई ट्रेनिंग लगानी है, अगर मेरी वेडनेसडे की ट्रेनिंग है, मेरी थर्सडे की ट्रेनिंग है, आई शुड एक्सपेक्ट कि भाई ये बोल रहे हैं और यही होगा. राइट. इफ आई एम कमिंग हियर फॉर द ट्रैवल इंश्योरेंसेस, easiest product to do, exactly, quickest product to do, highly competitive, right, good compensation as well. And after coming to this MGA, I realized कि भाई मैं तो 4 गुना कम पैसे ले रहा था. And I am one of the top 5, top 10. Exactly. Constantly. Exactly. Every month with the experience. उस पे भी बात करेंगे अभी, पर उससे पहले आपने एक पॉइंट बोला था कि आपके अपलाइंस जो हैं आपके क्लाइंट्स के साथ पॉलिसीज कर लेते थे, टीममेट्स के साथ पॉलिसीज कर लेते थे, आपको पता भी नहीं चलता था. तो क्या लगता था आपको ऐसे में कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, और ये आपको जब पता चलता था तो कितना चीटेड फील होता था आपको? No, exactly. It's one of the very pinch points in the journey, honestly I must say, कि initially आप एक दूसरे को फैमिली मान के चल रहे हो कि ओके ही इज माय लीडर, आई नीड टू फॉलो देम. लेटर ऑन यू रियलाइज दैट कि वो आपको कुछ नहीं बिल्ड कर रहा, वो अपने आप को बिल्ड कर रहा है, और वो जो नीचे वाला जिसको सपने दिखा रहा है उसको भी बिल्डिंग कर रहा है. इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द मार्केट. एग्जैक्टली, सिंपल इज दैट. एक्सप्लॉइट करो लोगों को. एग्जैक्टली. एंड दैट्स व्हाई देयर ब्रांडिंग इज सो बैड आउटसाइड. ब्रांड नेम तो बहुत खराब है. आप किसी से बात कर लो, WFG बोलते हैं फॉर द बैड रीजंस. एग्जैक्टली. देखें, कंपनी कोई बुरी नहीं होती, इट्स अबाउट द प्रैक्टिस. अब मैं अगर TD बैंक की ब्रांच गूगल पे खोलूंगा, TD बैंक इटसेल्फ अ गुड कंपनी, ठीक है, उस ब्रांच को 1 स्टार मिला होगा. Is the TD bad company or the people are working over there is the bad on that particular branch? But Aman, and I agree with you on that. पर ऐसा क्यों है कि ये ही कुछ जो कंपनीज हैं 2-3 मार्केट में जहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस है, आपने जो बोला था इनिशियली कि हर मीटिंग में सोशल मीडिया का बोल के बुलाते हैं तो भी 5530, 5550, 3330 यही बातें हो रही होती हैं. तो ऐसा क्यों है जहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस है, यहीं पे इस तरह से लोग चलते हैं, यहीं पे इस तरह से गड़बड़ें होती हैं, नाम खराब होता है, इस यही ब्रांड नेम्स क्यों इतने खराब हो गए? कुछ तो होगा. There are multiple reasons, which again this is my personal opinion. Of course. Because I spend enough time exactly to give the conclusion where I am. Right. आप एक 6-7 साल किसी कंपनी में लगा रहे हो, right, it's a big time. right. वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक सिस्टम के थ्रू चलेंगे, ठीक है, इट विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना, कि धीरे धीरे ओवरऑल सारी टीम सीखेगी और ग्रो करेगी. इट टेक्स टाइम. जो ओरिजिनल आइडिया था, जो ओरिजिनल आइडिया हर जगह होता है, ठीक है, पर रियलिटी में क्या होता है, मुझे नंबर्स जल्दी चाहिए, शॉर्टकट्स. आई वांट टू बी मिलियनेयर ओवरनाइट, जो होता नहीं है. सम पीपल वर्कड ऑन इट. ओके, ये मेरे जीजा है, ये मेरे से ही पॉलिसी लेगा, ये मेरा साला है, ये मेरे से ही पॉलिसी लेगा, ये मेरा फ्रेंड है, इसको मेरे थ्रू ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा. वो रिलेशन पे ले आते हैं. हाँ. और जो भी आपका सीनियर टीम होता है वो कहते हैं मैं आप पे बहुत फेवर कर रहा हूँ भाई. अच्छा. आई एम डूइंग सो मच फेवर ऑन यू, हेल्पिंग यू टू ग्रो. हाउ? बट वो हेल्प नहीं कर रहा, वो अपना ही उल्लू सीधा कर रहा होता है बेसिकली. दैट्स हाउ दे प्ले. एंड वो पर्सन बैठा रहता है कि यार मेरा रिलेशन खराब ना हो. मैं कितने लोगों से बात करता हूँ, नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. अच्छा. अगर मैं छोड़ूंगा तो चीजें खराब हो जाएंगी. अच्छा. भाई, इज ही पेइंग योर मॉर्गेज? Is he paying your groceries? Exactly. They're not. Exactly. Right? It's totally a professional decision. Exactly. It's a business decision. Yeah. और मैं कई लोगों से यही बोलता हूँ कि भाई आप अगर ये बात पूछ रहे हो, Are you really serious about your business? तो बोलेंगे हाँ. तो मैं कहता हूँ कि आप फिर बिजनेस बना किसके ले रहे हो? पहली बात तो अपने लिए या अपने अपलाइन के लिए. Exactly. अगर अपलाइन आप कल निकल जाओगे, आपको अपलाइन की सच्चाई पता चल जाएगी. जाने के बाद ही लगती है. जाने के बाद इमीडिएटली पता चल जाएगी कि वो आपका कितना साथ था, कितना भाई बना हुआ था, कितना जो भी बना हुआ था रिलेशन, वो जल्दी बना लेते हैं. आई हर्ड. एंड
एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट इवन हैव द नॉलेज. अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट के पास बैठे हो जो फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी रखता है, 90% आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट putting everybody, yes, some people are very highly qualified, smart, 90% people don't know what they're selling. आप कहते हो कि ये क्लॉज का क्या मतलब है, वो कहेगा मैं बताऊंगा तुम्हें. 2 दिन बीत जाएंगे, किसी को पता नहीं. आप उसके सीनियर को कॉल करके वो कहेगा मैं बताऊंगा तुम्हें. आप इन्हें ईमेल कर दो. यार जब तक आपको 15 दिन में ईमेल का जवाब आएगा, यू लॉस्ट द क्लाइंट, ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि आप फोकस कर रहे हो आपकी सेल कहाँ से निकल रही है. अब स्पर्श के अंदर 10 बंदे हों और आप एक ही हिरार्की में चल रहे हो, ठीक है, बट आपके जो 4th लेवल पे आप कहते हो ये सेल निकाल देगा, ये 3 बेकार है. नाउ यू आर नॉट फोकसिंग ऑल 3. एग्जैक्टली. यहाँ से हमने 4 सेल निकाली, वो 3 को पता ही नहीं ओवरहेड कौन ले गया, स्पर्श ले गया. टेक्निकली तो उनका बनता था ना जो जिस लेवल पे आए. सही बात है. एक एसोसिएट है, एक ट्रेनिंग एसोसिएट है, एक एमडी है, एक एसएमडी है, ईएमडी है, राइट? तो होता क्या है कि भाई अगर आपके अंडर ट्रेनिंग एसोसिएट है, उसने पॉलिसी सीधी अपने एसएमडी से कर ली, आप एमडी थे, वेयर्स योर ओवरराइड, वेयर्स योर ट्रस्ट. एग्जैक्टली. और वो बड़ा अंदरले तरीके से होता है. और ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन लेवल्स पे बहुत फोकस है, शायद उनके कमीशंस रिड्यूस हो जाते हैं, प्रोडक्शन लेवल ना मीट हो, रिक्रूटमेंट लेवल्स ना मीट हो, तो एक कांस्टेंट जो फोकस बना रहता है ये सारे डर्टी गेम्स के पीछे, वो इस बात पे है कि यू डोंट रियली ओन और यू आर नॉट वेस्टेड इन योर बिजनेस फ्रॉम डे वन. क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता मैं इस टीम में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कि मैं मूव आउट कर जाऊंगा या मैं ग्रो कर जाऊंगा या मैं बाहर चला जाऊंगा, ये मेरे से आगे ना चला जाए. देयर मल्टीपल रीजंस, एंड ऑनेस्टली आई सी स्टफ विद माय आईज. एक सीनियर लेवल पे बंदा कह रहा है कि ये आईए की यही पॉलिसी बेचनी है. अच्छा भाई वही मेजोरिटी सेल पे जा रही है. विद अनदर एमजी उनके पास 2-3 प्रोडक्ट हैं जो वो बेचते हैं, ठीक है. एंड अगर हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं, उसमें 2 ही प्रोडक्ट हैं. ट्रैवल की आपने बात की, तो आप कह रहे हैं 2 कंपनियां हैं, तो ये कौन सी कंपनियां हैं और वैसे ओवरऑल कितनी कंपनियां? विच आई एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली, बातों में तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं. अच्छा. बट इन रियलिटी में रिमी, अलायंस, मेन्यूलाइफ, ट्रैवलेंस. ट्रैवलेंस आपकी प्री एग्जिस्टिंग कवर नहीं करती. मेन्यूलाइफ कंप्लीट नहीं है आपके पास. ओके. अलायंस का कोड बहुत महंगा होता है. 99% पीपल डोंट फॉल फॉर इट, इवन दे डोंट फॉल फॉर द मेन्यूलाइफ. एग्जैक्टली. आई आस्क यू वन थिंग, रिमी और मेन्यूलाइफ के कोड में बहुत फर्क होता है. ओके. और आपके पास ले दे के प्रोडक्ट बचा ट्रैवलेंस एंड रिमी. ओके. और अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो लेके बचा जस्ट 1 प्रोडक्ट, रिमी. ओके. अब क्लाइंट आपके पास आ गया जो मार्केट में, यू नो दैट इट्स वेरी सैचुरेटेड मार्केट, राइट? हाउ यू गोना कम्पीट? एग्जैक्टली. और वर्स्ट पार्ट ऑन द टॉप, यू आर गेटिंग 3 times लेस मनी. एग्जैक्टली. अब आप एक पॉलिसी पे $80 बना रहे हैं, लोअर लेवल पे, बिल्कुल लोअर लेवल पे. एग्जैक्टली. वही कंपनी का, वही पॉलिसी का, उसी अमाउंट का दूसरी एमजीए में बंदा $250 बना रहा है. वाओ. यू आर गेटिंग द पार्ट. अब उसमें बंदा जो सोचता है कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, वाई इतनी हेडेक क्यों लेनी है $60 के पीछे? यू गेटिंग द पॉइंट. बट दे मिस द बिगर पिक्चर कि एक्सपीरियर में आके एक तो 11 कंपनीज हैं उनके पास. एग्जैक्टली. और सेम चीज पे दे कैन मेक 3 times द मनी एटलीस्ट, राइट? क्योंकि इसमें अगर आप एक एमजी में 25 से 30% के अंदर बना रहे हो, ठीक है, वहाँ पे पहले तो 30% तो एमजीए को मिल रहा है. उसके बाद कट ऑफ आएगा जो आप जिस लेवल पे बैठे हो. अगर एमजीए ने $100 बनाया, आपको 26 मिलेंगे अगर आप बिल्कुल लोअर लेवल पे हो. वेयर इज द मनी? तो इंसेंटिव क्या है बेचने का? एग्जैक्टली. तो बंदा कहता है कि यार व्हाई आई हैव टू गो फॉर ट्रैवल, जबकि ट्रैवल इज अ वेरी बिग मार्केट. एग्जैक्टली. आपके क्लाइंटल वहाँ से निकलती है, आपके कनेक्शंस वहाँ से निकलते हैं, एंड इट्स इजीएस्ट टू सेल. और उसकी लायबिलिटी भी कम होती है क्योंकि ये 20 साल तक नहीं चलती. एग्जैक्टली. राइट? एनीबडी हु इज वेरी लेमैन पर्सन, कि जिसने कभी इंट्रोडक्शन भी नहीं है कि भाई फाइनेंशियल इंडस्ट्री होती क्या है, they can make money. बिल्कुल. And they can start with us, they can make money, and himself they can see कि भाई कितने पैसे बनते हैं, कितनी ग्रोथ है. Even if you Google on which sector build the most millionaires, it's financial sector. और ये जो ट्रैवल की आपने बात की, तो कुछ स्टेटिस्टिक्स में देख रहा था. 2019 में 22 मिलियन 22 मिलियन विजिटर्स केम टू कनाडा.
तो अगर साल में आपको 100, 200, 400 भी मिल गए, आपने मेजॉरिटी लोगों की जो फुल टाइम इनकम है वो आपने पार्ट टाइम अपने इस बिजनेस में आप रिप्लेस कर सकते हो एक्सपीरियर में. सो अब आपको ये सोचना है व्यूअर्स की, अगर आपको ये एक स्पेशली जो हमारे देसी कम्युनिटी में जो ब्रोकर्स हैं जो काम कर रहे हैं, मे बी पार्ट टाइम कर रहे हैं, मे बी फुल टाइम कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपके कितने सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हो और आपका कितना पैसा बन सकता है. सेम सेल में बिजनेस ज़्यादा क्लोज होगा, कमीशन ज़्यादा बनेगा और बिजनेस आपका है. अब उस पर भी एक बात आपसे मुझे करनी थी कि जब आप आए थे और अब हमने ये पूरा सिस्टम जो सेटअप किया है कि ट्रैवल से हमारा बाकी बिजनेस चल पड़ा है, सिस्टम एक हम क्रिएट कर चुके हैं, बट जब आप आए थे उसका इतने सारे ट्रैवल कंपनीज के साथ जो आपको कॉन्ट्रैक्टिंग करनी पड़ी थी. और इनिशियली आई फेल्ट इट्स अ हेडेक ऑनेस्टली स्पर्श, कि इतनी सिरदर्दी है, बहुत इसके साथ भी पेपर वर्क है, इसके साथ भी है. वहाँ पे मैं गया था, लाइसेंस लिया, डन, बूम, एग्जैक्टली, एक टिकट डालो, एंड ऑफ द स्टोरी. पर यहाँ पे बट आई अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, आई एम द ओनर. एग्जैक्टली. देयर व्हाटएवर आई क्लोज्ड इट, भाई मुझे नहीं पता कोर्ट पे जा रहा है सब, किसको जा रहे हैं पैसे. अब मेरे को क्लाइंट खुद कॉल करते हैं, भाई हमारी पॉलिसी थी जो हमने यूनिवर्सल लाइफ ली हुई थी, कोई मॉन्ट्रियल में मैनेज कर रहा है. अरे वाह. अब वो फोन नहीं उठाते. वेयर वी गेट द सपोर्ट नाउ. सो व्हेन यू लुक फॉर अ लॉन्गर पिक्चर, इट्स नॉट वर्थ. जब आप किसी को बोलते हो कि ओके वी आर बिगेस्ट, इंडीड यू आर अ बिगेस्ट, बट आर यू द बेस्ट Exactly. for my own life or how my are own you the decision? best for your clients, right? Exactly. अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जहाँ कोई छोड़ के जाता है तो उसके अपलाइन में उसका बिजनेस रोल अप हो रहा है, अब वो अपलाइन अगर खुद एब्सेंट है बिजनेस से, जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ कई सारे एसएमडी बस एसएमडी बन के बैठे हुए हैं. Exactly. कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है. Exactly. किसी को भी कोई भी प्रमोशन दे दिया जाता है. उनको तो ये नहीं पता उनकी टीम में बंदे कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, कंपनी कौन सी है, तो वो क्या हेल्प कर पाएंगे इन क्लाइंट्स को जो इस पॉलिसीज जा रही हैं. मैं सिंपल सबसे बात करता हूँ कि भाई आपने ये पॉलिसी ली एबीसी इंसान से, ठीक है, जो उस एमजीएस से था, उसने आपको बताया इतने साल में इतने पैसे बढ़ जाएंगे. इज इट गारंटेड? एग्जैक्टली. अनदर थिंग, इसमें किस फंड के चार्जेस होंगे, कैंसिलेशन कितने चार्जेस होंगे, कौन सी कंपनी आपको लोन देगी, कितना लोन देगी, क्या इस पॉलिसी पे वो देगी, कितनी एजुकेशन. सी WFG वाले हों या बाकी हों, ये एक बात जरूर कहते हैं, वी एजुकेट पीपल. ठीक है, कि बैंक आपके घर नहीं आता एजुकेट करने के लिए, हम आते हैं. ठीक है. अब मैं किससे बात करता हूँ, आई से स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई वर्क विद दिस कंपनी. मैं छुपाता नहीं हूँ जब तक मिलना हो कि भाई मिल के बात करेंगे, क्योंकि ये बंदा नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांडिंग खराब है. और ब्रांडिंग खराब हुई कैसे? लोगों से ही खराब हुई ना. तो वो कहते हैं कि वी आर ओन बाय एगॉन, फिर कई बार वो एगॉन का नाम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ WFG. WFG का इतने सारे कम्युनिटीज में नाम खराब है. अब एक आप बात बताओ, गूगल पे आप कॉल करते हो, हार्डली दे पिक द कॉल, हार्डली ऑन द कस्टमर सर्विस. देन व्हाई यू हैव जीमेल? व्हाई? बिकॉज आपको पता प्रोडक्ट अच्छा है उनका, आपको पता वो चलेगा और यूजर फ्रेंडली है. यूट्यूब देखते हो आप, क्योंकि वो चलेगी. एग्जैक्टली. राइट. मैं अगर किसी को बोलूं कि भाई वीडियो देखनी है, सबसे पहला क्या नाम आता है? यूट्यूब. कितनी बारी आपने यूट्यूब के कस्टमर केयर पे कॉल की है? नेवर. जीरो. राइट. क्योंकि दे यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इट. एग्जैक्टली. सिंपल इज दैट. वही चीज होती है जब हम बात करते हैं पैसिव इनकम की. मैंने EMD लेवल के बंदे को रात के 2 बजे बातें करते देखा है घर छोड़ के आते हुए, क्योंकि उसने लोअर लेवल पे रिक्रूट करना. क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि पैसे नहीं बनेंगे तो व्हाट टाइटल मैटर्स. ही पॉइंट उठाया कि विदाउट एक्टिव इनकम, एग्जैक्टली, कौन सी पैसिव इनकम की हम बात कर रहे हैं. exactly. क्योंकि अगर, और वो कहते हैं ना कि हाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट 2 लेवल्स के लोगों को आप ले जाओ, वी डोंट केयर. बट उनको ये नहीं पता कि आपके फर्स्ट 2 लेवल्स को अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो वही आपके साथ लंबा चलेंगे. एग्जैक्टली. और कई लीडर्स से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि वी डोंट केयर, हमें हमारे ओवरराइड्स पसंद है. कि FA लेवल जो ट्रेनी एसोसिएट लेवल पे जो उनका एक टर्म पॉलिसी में बन रहा है, उससे कहीं ज़्यादा उसके SMD को ओवरराइड जा रहा है. exactly. तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आर यू ओके टू बी अ लीडर दैट योर अपलाइन गेट्स, दैट योर डाउनलाइन गेट्स 1/3 ऑफ द कमीशन ड्यू टू देम,
while you make your own fat overrides? This thing remembers me one real talk that happened last few days. So somebody approached one of my team member, okay, I can give you SMD. Okay, and he's a SMD itself in the same MGA. तो इनिशियली ही वाज लॉस्ट कि भाई ये कहाँ से आ गया बात करने के लिए. ठीक है, चलो बात शुरू हुई. तो मैंने उनसे सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे. भाई यहाँ है ओनरशिप, यहाँ है मोर कंपनसेशन, ठीक है, ट्रेनिंग्स क्लैरिटी, एंड 4th थिंग देयर इज सिस्टम टू वर्क ऑन. एग्जैक्टली. आप इसको अपना सिस्टम इससे बेटर प्रूव कर दो, मैं आज छोड़ के आ जाऊँगा आपके पास. अगर एक क्लाइंट को ट्रैवल की पॉलिसी लेनी है, ही इज 86 ईयर ओल्ड, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस उसकी हैं, what product you have on the shelf. You can say that 200 कंपनीज हैं हमारे पास. Exactly. बट अगर बिकती नहीं तो वो 2 ही बिकती हैं, तो 2 ही होंगी ना. Exactly. ठीक है. He doesn't have answer. So initially he started. मैं पहले $1,00,000 की जॉब करता था, फिर मुझे मनी समझ आई कैसे वर्क करती है, तो मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगी, लव द ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, तो मैं इधर आ गया. तो व्हेन आई टॉक अबाउट द कंपनसेशन, अबाउट द ट्रेनिंग्स, देन ही सेड कि मैं पैसों के लिए नहीं आया, मैं आया बिकॉज लीडरशिप बड़ी अच्छी थी. अच्छा. सो पहले आप पैसे के लिए आए थे, अब आप लीडरशिप के लिए आए. ठीक है. फिर तीसरे लेवल पे वो 5 मिनट बाद वो बोलता है मैं सिर्फ लॉयल्टी के लिए इस कंपनी में हूँ. राइट. तो आपकी तो स्टेटमेंट हर 15 मिनट बाद चेंज हो जाती है. आप क्लाइंट के साथ 20 साल कैसे रहेंगे? एग्जैक्टली. आप तो पॉलिसी बेच के 5 साल बाद छोड़ के निकल जाएंगे. सफर एट द एंड ऑफ द डे. हम कितने लोगों की पॉलिसीज देखते हैं. एक आपने चीज जरूर नोटिस की होगी स्पर्श, majority of the people, WFG sold universal life. Exactly. Majority of the people, 90+%. I don't have the exact data, but 90% plus universal life. आपको पता है कितने खर्चे करते हैं उसमें, कैसे मनी ग्रो होती है. Exactly. राइट. आप पॉलिसी की फी कितनी दे रहे हैं, कितने साल बाद आप लोन ले सकते हैं, Exactly. किस परसेंटेज से आपकी ग्रोथ होगी. That is linked to market. Exactly. That is linked to company. And the cost associated with it, right? Right. अब एक बंदा जो बच्चा ही 45-50 साल रहा है, right? छोटी सी फैमिली है, he is like hand to mouth. आपने उसको 500 की पॉलिसी दे दी. Exactly. अगर उसकी जॉब चली जाएगी, सबसे पहले क्या काम करेगा? कैंसिल करेगा. ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया उसका. अब यहाँ प्रोटेक्शन गई भाड़ में. जबकि वही सेम चीज वो $50 में अफोर्ड कर सकता था. हाँ. अगर उसकी बजट शॉर्टेज है तो. हाँ. कि भाई तुम टर्म ले लो. Exactly. जब तुम्हारा हाथ खुलेगा तो आप जो मर्जी लो. हाँ. सेक फंड में जाओ, रजिस्टर्ड प्लान में जाओ, RESP में जाओ, यूनिवर्सल में जाओ. इट्स योर इंडिपेंडेंस. एग्जैक्टली. एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द करेक्ट नॉलेज. एग्जैक्टली. राइट. आपने एक बहुत सही पॉइंट उठाया ये, तो इस पे मैं थोड़ा सा और गौर करूंगा कि मैंने एक क्लाइंट को देखा था, उसकी पॉलिसी मैंने जब निकाली, इक्विटेबल लाइफ के साथ थी, किसी WFG की एजेंट ने लिखी थी. 5.5% पे प्रोजेक्शन रेट किया था, विच वॉज गुड. बट देन वो फंड्स में एलोकेशन करना ही रह गया था उसका. सो फॉर द लास्ट 5 years द क्लाइंट वॉज पेइंग द मंथली प्रीमियम थिंकिंग that at least 5.5% is the growth that she is going to get. And all she got was 0.5%, that too after the company actually corrected and credited her that amount. Otherwise it was 0%. So for 5 years she was paying the premium. This agent never approached her. आप जो बोले कि market linked है, तो ideally हर साल एनुअल रिव्यू सेटअप होने चाहिए क्लाइंट्स के साथ. exactly. अगर आप यूएल पॉलिसीज बेच रहे हैं. देखिए पेपर्स में तो होते हैं, रियलिटी में होते हैं. रियलिटी में नहीं होते. दैट्स द क्वेश्चन. अब RESP की साइड पे आईए का एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने बेचा WFG में. दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम. बट व्हेन यू डिग इन, कितने चार्जेस वो लेते हैं. एग्जैक्टली. सरेंडर चार्जेस देख लो, बाकी देख लो. एग्जैक्टली. आर रियली योर मनी इज ग्रोइंग. मैं इनफैक्ट एक ट्रेनिंग में था जहाँ पे खुद आईए के लोग आए थे, और उन्होंने कहा था कि हम माई डिप्लोमा प्रोडक्ट में अपने बच्चों के लिए भी नहीं लूँगा, मैं लूँगा तो माई एजुकेशन प्लान लूँगा आईए का. और हम भी वही बेचते हैं, माई एजुकेशन, बिकॉज आपके पास वो सारे फंड के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जो आप बाहर कहीं से भी ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो. वेराज माई डिप्लोमा में वो बड़े कमीशन के लिए ये वाली बेकार सी पॉलिसीज RESPs बेचती हैं लोगों को. सी यू गो टू एनी ट्रेनिंग ऑफ प्रीवियस MGA, किसी भी ट्रेनिंग में चले जाओ, दे एंड अप गेटिंग यूनिवर्सल लाइफ ही बेचो. और उसमें भी वो काफी हैवी अमाउंट होता है यूनिवर्सल लाइफ.
पैसे बनेंगे, बाकी में पैसे नहीं बनेंगे, राइट? अब हर किसी की नीड वैसी नहीं होती, ऑनेस्टली स्पर्श। एक साइड पे तो आप ये कह रहे हैं ना कि एनालिसिस करो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी नीड एनालिसिस जो करते हैं, बट इन रियलिटी यू आर लुकिंग फॉर योर पॉकेट, मेरी पॉकेट में क्या आ रहा है। एग्जैक्टली ये आपने एक और सही पॉइंट बोला, क्योंकि मेरे एक और टीम में आई थी बंदी जो वहाँ लाइसेंस लेके WFG से यहाँ आई थी, क्योंकि उसने देखा कि हम किस तरह से मल्टीपल चॉइसेस दिखाते हैं क्लाइंट्स को। अब उसने क्लियरली बोला था उसके अपलाइन को कि मेरा $100 पर मंथ का बजट है। उसके अपलाइन ने उसको एक पॉलिसी बेचने की ट्राई करी थी पूरी तरह से, विच वाज UL। नीड्स एनालिसिस में 1 मिलियन का कवर चाहिए था उसको, पॉलिसी दी थी 250,000 UL की, बजट था $100, 250 की पॉलिसी दे रहे हैं उसको। हाउ इज दैट अ फेयर जॉब? एंड शी सेंस दैट, एंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑल्सो सेंस दैट नाउ, because as soon as you go and tell them I'm here to sell you something, their defenses are up. Oh yeah, exactly. Whereas with our system, you are actually bringing down their defenses and showing them what it is that they need in a very no pressure, no obligation way. तो उनको ट्रस्ट आता है और उनको पता है कि अब ये इनके साथ हम काम कर सकते हैं, इनके साथ हम ट्रस्ट रख के एक न्यू रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। See, I will add something on top of it. एक क्लाइंट आपके साथ आता है, आपसे पॉलिसी लेता है, इट्स लाइक अ मॉर्गेज। मॉर्गेज तो फिर भी रिन्यू होती है, पॉलिसी 20 साल तक चलती है, कुछ लोगों की लाइफ टाइम चलती है। एग्जैक्टली। एंड अ रॉन्ग चॉइस कैन कॉस्ट यू अ लॉट। जब लोग ये चीज समझ जाएंगे ना, दे विल डू द फेयर चॉइस। मैं कहता हूँ आप बी यूज योर ड्यू डिलिजेंस, मार्केट में जाओ, 10 लोगों से पूछो। आप एप्पल टू एप्पल तो कंपैरिजन तब करोगे ना, बट आपको पता होगा कितने तरह के एप्पल हैं। आपको दिखाई एक एप्पल जाए और यही बेस्ट है। और इनिशियली व्हेन आई वाज विद द प्रीवियस MGA, तो वी आर द बेस्ट, वी आर द बिगेस्ट। हम बिगेस्ट इसलिए हैं बिकॉज वी आर द बेस्ट। पर जब आप मार्केट में डिग इन करते हो तब समझ आता है कि भाई आप वॉल्यूम में खेलते हो, दैट्स ऑल, दैट्स नथिंग एल्स। एंड हाउ ओल्ड आर यू in the country? Come on, you cannot compare one company which is 10-year-old and one company which is 40-year-old. Exactly. Yeah. Right? Again, pardon me for my numbers and the years, but I'm talking approximately. Exactly. Right? Yeah. अब मैं कहूँ कि भाई आपके पास तो मिलियनर्स नहीं होते, हमारे पास तो होते हैं। Right? Right. With the time, yes, we will have it. Exactly. ठीक है? Exactly. This is my personal opinion. So I don't own. And we'll have them even though we are paying so much into the field. Exactly. Even then. When I came to this MGA, I realized कि भाई अगर मेरे लोअर लेवल का करा मैं तो $10 ही बच रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में, जबकि वहाँ पे तो मुझे डबल आ जाता था। Exactly. But that system is designed so that upper level will be very happy. And that's how they sell passive income. पर भाई पैसिव तो तब होगी अगर एक्टिव होगी। अगर एक्टिव बंदा SMD स्ट्रगल कर रहा है, EMD स्ट्रगल कर रहा है, तो फॉरगेट अबाउट द लोअर पीपल। कितने बंदे हैं आप बताओ कि जो ट्रेनिंग एसोसिएट से ही छोड़ जाते हैं? एग्जैक्टली राइट, 80%। एग्जैक्टली। ऊपर से 10% MD छोड़ जाते हैं, वन ऑफ इट। ठीक है, एग्जैक्टली। और SMD लेवल पे भी छोड़ के जाते हैं। सही बात है। अब एक बंदा जो ट्रक ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, आई पर्सनली मेट विद दैट गाय, जो SMD है उसे अपनी टीम के नाम नहीं पता, कैसे सेल होती है वो नहीं पता, तो वो SMD है क्योंकि उसका XYZ रिश्तेदार EMD है, इसलिए वो SMD है। राइट? सो इट्स एंडलेस स्टोरीज, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू थिंक वेयर वी आर गेटिंग द वैल्यू फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली। आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो आपने हार्ड अर्न की है वो कहाँ पे मिल रही है, आपको प्रॉपर नॉलेज कहाँ पे मिल रही है। मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपीरियंस से पहले कभी वैसी ट्रेनिंग नहीं मिली थी जैसे हमने लास्ट टाइम की थी कि भाई हाँ सामने वाला ऐसा है तो क्या होगा, वैसा है तो क्या होगा, नहीं तो कहते क्लोज पढ़ लो उसमें होगा कहीं पर। दिस इज नॉट द प्रायोरिटी पॉलिसी। एग्जैक्टली। क्योंकि इसमें आपके अपर लाइन को पैसे नहीं आ रहे। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कंज्यूमर हु नीड टू थिंक। आपने किस इंसान के साथ काम करना है वो मैटर करता है, किस कंपनी के साथ काम करना है वो भी मैटर करती है, और किस सिस्टम में जाना है वो भी मैटर करता है। सिंपल इज दैट। सो आपने आते से ही एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड सेटअप किया है अपना यहाँ पे, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत आगे निकलेंगे। अभी दिस इज जस्ट अ वार्म अप फेज फॉर यू। डेफिनेटली, एंड आई एम लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म पिक्चर एज वेल, कि जहाँ पे मैं आगे जाके ग्रो कर सकूँ, टीम साथ में ग्रो कर सके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई शुड एजुकेट माई टीम एंड पीपल आउटसाइड।
so that they can do a calculation based choices rather than the blind choices. Right. So with that, then Aman, I'll ask you, what message would you have for our viewers today, who may be at WFG or other such places and facing the same kind of challenges that you did or you went through? The only and foremost message is, are you getting enough compensation the hard work you are doing? That's first thing. Are you getting educated properly? क्या आप जो चीज़ बेच रहे हैं आपको पता आप बेच रहे हैं कितने की बेच रहे हैं, क्या आपको मिल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है उसके, और आर यू हेल्पिंग रियली द फैमिलीज, और डू यू हैव प्रॉपर नॉलेज दैट यू आर डूइंग पुटिंग इनटू एवरीथिंग. आप अगर किसी इंडस्ट्री में और कमा नहीं रहे, इवेंचुअली क्या होगा स्पर्श, यू विल लीव इवेंचुअली. आप 1 साल तक रुकेंगे, 2 साल तक रुकेंगे, इवेंचुअली यू विल लीव. कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट स्पर्श, and eventually we will guide you. We are not saying join us, join our team. We are saying we will give you proper knowledge. Decision is yours कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, क्या सेल करना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, गोल्स क्या है, गोल्स क्या हैं, किस एरिया पे आप फोकस करना चाहते हैं. इफ यू आर इनटू इमिग्रेशन फील्ड और इफ यू आर इनटू मल्टीपल अदर फील्ड्स, सुपर वीजा इंश्योरेंसेस, exactly, golden egg, yeah, visitor visa insurances, and that's what I do the most as well, honestly. And I find it genuine here. I find that people who are focusing to educate yourself, putting time on you, your education, and that's what matters the most. आप कितना करेंगे, आपकी लाइफ सिचुएशन क्या है, वो सारी अलग बातें हो जाती हैं, बट वट एवर यू आर गेटिंग इट, वट एवर यू आर पुटिंग एफर्ट्स इनटू, that should be worth. And that's my message to everybody, honestly. So you are right, you are bang on. I mean, Expedia is what you make it out to be. Exactly, and I'm very upfront. अगर कल को मुझे ऐसा लगेगा Expedia वो चीज़ नहीं कर रही जो वो कह रही है, I'll move out. Exactly. But this time you'll have your own book of business. Definitely. I'm very happy where I am today. Yes. Very nice speaking with you today. Thank you for taking time out. Well, thank you for you as well that you are inviting us for the whole session, and which we never did in the past. Even in my previous MGA, there are ABC upper leaders. They talk always and their message goes out. But at lower reality, what's going on? That's what nobody talks about. Right. कि आप हैं बट आप कमा नहीं रहे हैं. आप 90% लोगों से पूछोगे MGA का पता है, हाँ WFG. But did you make any money? No. क्यों? क्योंकि रास्ते में जाते जाते they lose the focus. क्योंकि किसी ने आपको फोकस जाने नहीं दिया. Simple as that. Well, I thank you for yours and thank you our viewers. You can also contact me, Aman Sohal or Sparsh, and we can definitely certainly help you out.